learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the very first chapter of class 7th science. That is about nutrition in plants. Alright, let's start the chapter. See students, what they're saying is that all living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. And these basic functions which allow living organisms to live on earth are known as life processes. What they're saying कि सभी living organisms अपनी life के survival के लिए कुछ basic and कुछ necessary functions होते हैं जो उनकी body में चलते रहते हैं, right? And उन्हीं life processes को या उन्हीं basic functions को जो एक living organism के survival को possible बनाता है, that is known as life processes. So कुछ basic life processes जो common होते हैं सभी living organism में, that is nutrition, respiration, circulation, transportation, excretion, reproduction, and response to stimuli. In this chapter, we are going to learn about nutrition and that also in the plants, right? So all living organisms, सभी living organisms को food की requirement होती है, right? Because food ही है जो हमें energy provide करेगा बाकी other life processes को carry out करने के लिए, ठीक है? तो plants, if you talk about plants, तो plants जो है अपना food खुद prepare कर सकते हैं. Animals ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? Animals cannot prepare their food themselves. Okay, they are directly or indirectly dependent on the plants or any other animal for their food. Humans and animals, ठीक है, humans and animals इसलिए क्या कहा जाता है कि ये plants के ऊपर directly और indirectly dependent है अपने food के लिए. The process of taking in food and its utilization by living organism is called nutrition. ठीक है, वो life process जिसमें food का intake किया जा रहा है एक living organism के through and उसका utilization किया जा रहा है, उस process को कहा जाता है nutrition process. Now modes of nutrition. So जो modes of nutrition है एक living organism की body में वो two types में classify किए जाते हैं. Either autotrophic nutrition, other is heterotrophic. First of all autotrophic. So एक ऐसा mode of nutrition जहाँ पे organism अपना food खुद prepare कर सकता है. Okay, they can prepare their food themselves from simple substances. That mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. ठीक है, जहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट. नाउ स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है, एंड इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को आप ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या सिंपल ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. Now let's come to heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition क्या है? See, the word heteros का मतलब होता है other. So एक ऐसा mode of nutrition जहाँ पे organisms अपना food किसी other organism से derive करते हैं, that is called heterotrophic mode of nutrition. And जिन organisms के अंदर ये mode of nutrition चलता है, उन organisms को heterotrophic organisms या simple heterotrophs बोला जाता है. Alright? See, as these organism, what they saying, क्योंकि ये organism other plants and animals के ऊपर dependent है अपने food के लिए, so they are called consumers. ठीक है, सभी animals, including human beings, सभी हम किसमें consumers या heterotrophs category को ही belong करते हैं. इसीलिए the mode of nutrition in non-green plants and animals is known as heterotrophic nutrition. Yeast, mushrooms, moles ये सभी non-green plants के examples हैं, यानी कि ये green नहीं होते हैं. Being plants, still they cannot prepare their food. They are considered to be as heterotrophs. Next we come to autotrophic nutrition in plants. अब बात करते हैं plants में autotrophic nutrition की. So students, autotrophic nutrition is found in green plants. ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, अपना food खुद prepare कर सकते हैं प्रोसेस के थ्रू जिसे आप बोलते हैं photosynthesis process. यहाँ पे photo का मतलब होता है light and synthesis का mean होता है to combine. So जो प्लांट्स की ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती है स्टूडेंट्स, उसमें एक्चुअल में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ऑलराइट, एंड विदाउट क्लोरोफिल फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. सो फोटोसिंथेसिस लिटरली मींस सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फूड का सिंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन होना किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. चलो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल. सी, so plants अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. किस में होता है ये प्रोसेस, लीव्स में होता है. यंग ग्रीन स्टेम्स जो है प्लांट्स के इसमें चलता है. सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बाय द प्लांट्स. ठीक है, मिनरल्स एंड वाटर्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स की रूट्स के थ्रू एंड देन उसे वेसल्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है व्हिच रन लाइक पाइपलाइंस थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी.
देन कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स अपने टिनी पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एयर, ठीक है। प्लांट्स की लीव्स में देयर आर टिनी पोर्स प्रेजेंट जिन्हें आप स्टोमेटा बोलते हैं, एंड स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से प्लांट्स इनटेक करते हैं, ठीक है। मेनली ये लीव्स के लोअर सरफेस पे होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। लीफ में जो रॉ मटेरियल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ग्रीन सेल्स के थ्रू एंटर करेगा, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर द स्ट्रक्चर्स, क्लोरोप्लास्ट आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट दैट आई टोल्ड यू क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड क्लोरोफिल का ही काम है सन की एनर्जी को यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। इसी एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, एंड दिस ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद ये ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल है, एंड इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस का भी प्रोडक्शन होता है बाय द ग्रीन प्लांट्स। सो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन यू कुड सी, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कंबाइन करके प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ग्लूकोज मीन C6H12O6 प्लस अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन गैस इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, अच्छा, नाउ नेक्स्ट टू कम द टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स आपके किसके, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को कन्वर्ट एंड स्टोर किया जाता है प्लांट्स में एज स्टार्च, ठीक है। स्टार्च आपका लीव्स में स्टोर हो जाता है या किसी भी अदर प्लांट पार्ट में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें काफी सारा स्टार्च स्टोर होता है। ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज आई टोल्ड यू। ऑलराइट, चलो, नाउ लेट्स कम टू द this activities which they have given you. So first of all, the aim of this activity is to test the presence of starch. Leaves में starch का presence है या नहीं, हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। So इसके लिए हमें चाहिए green leaf, beaker, stand, burner, test tube, alcohol, iodine solution, tap water and petri dish. What is the procedure for that? आपने एक healthy green leaf को pluck किया प्लांट में से जिसको आपने सनलाइट में रखा हुआ था, फिर आप उसे वाटर में बॉईल करेंगे, ठीक है। वो वाटर आपका क्या, एक बीकर में आपने पानी लिया और उसके अंदर आप उस लीफ को बॉईल करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स। व्हाट विल हैपन इज कि बॉइलिंग के थ्रू जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड फर्दर उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस स्टॉप हो जाएंगे। फिर आप उस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लेस करेंगे जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, एंड उस टेस्ट ट्यूब को फिर आपको एक बीकर के अंदर डालना है जो बॉइलिंग वाटर को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल लीफ को ब्लीच कर देगा एंड इसको फ्री फ्रॉम क्लोरोफिल बना देगा। फिर आप उस लीफ को वाटर में वॉश करेंगे, एक पेट्री डिश में प्लेस करेंगे, एंड देन उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को हमें ऐड करना है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो लीफ है उसका कलर ब्लू ब्लैक टर्न हो चुका है, एंड दिस ऑब्जर्वेशन टेल्स अस कि जो लीफ है उसका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होना, इट मीन्स कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, बिकॉज आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी वी हैव इज, इसमें हम शो करने वाले हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो उसके लिए आपने कोलियस लीफ ली एंड कुछ मटेरियल्स लिए विच वी यूज इन द प्रीवियस एक्टिविटी आल्सो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने कोलियस प्लांट लिया जिसकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, यानी कि उसमें कुछ ग्रीन एंड कुछ पर्पल एरियाज होते हैं लाइक दिस। आप एक लीफ को प्लक करोगे, उसकी आउटलाइन ड्रॉ करोगे एक पेपर पे, एंड ऑल्सो उसमें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज को मार्क करेंगे। देन आपको उस लीफ को टेस्ट करना है फॉर द स्टार्च, जैसे कि हमने अपनी पुरानी एक्टिविटी में किया था, एंड देन अब आप उस लीफ के ब्लू पार्ट को अपने स्केच के साथ कंपेयर करोगे। व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि केवल वो पार्ट जो ग्रीन था वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हुआ है, वेयर एज जो अदर नॉन ग्रीन पार्ट है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। सो व्हाट वी कंक्लूड इज कि स्टार्च आपका केवल लीफ के ग्रीन एरियाज में बना है, किसकी वजह से, ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, दैट इज क्लोरोफिल, एंड इसीलिए उसका कलर ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो गया विद द एडिशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। बाकी जो अदर नॉन ग्रीन एरियाज थे वहां पे स्टार्च टेस्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स केवल लीफ के वही पार्ट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि जो ग्रीन कलर्ड होता है, वही अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। अदरवाइज जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं लीफ के और द प्लांट के, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। ऑलराइट, सो व्हाट डज इट प्रूव कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट वी विल शो कि सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
सो फॉर दैट आपने कॉटेड प्लांट लिया, ब्लैक पेपर एंड कुछ मटेरियल्स फॉर द स्टार्च टेस्ट एज एन अर्लियर एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू, आपने कॉटेड प्लांट लेकर उसकी लीव्स को डी-स्टार्च किया. ठीक है, कैसे? पहले प्लांट को एक डार्क रूम में रखा फॉर अबाउट 2 days. फिर उसके बाद उसके कोई सी भी एक लीव को आप ब्लैक पेपर से कन्वर्ट करेंगे, जिसपे आप एक स्टार शेप का डिजाइन कट करेंगे उस पेपर पे, एंड देन उस लीव को आप कवर करेंगे लाइक दिस. अब इस प्लांट को सनलाइट में रखना है एंड कुछ आवर्स के बाद आप उस लीव को टेस्ट करोगे जो इसको आपने ब्लैक पेपर से कन्वर्ट किया था. क्या टेस्ट करेंगे? फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो अनकवर्ड लीव है ना, या लीव का वो पार्ट जिसको सनलाइट मिल रही थी कट के थ्रू, है ना, उसका कलर जो हो चुका है ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हुआ है. सो व्हाट वी कंक्लूड कि स्टार्च के एब्सेंस होने की वजह से इट शोज कि फोटोसिंथेसिस आपका लीव के उस पार्ट में नहीं होगा जहां पे सनलाइट नहीं है. दिस शोज कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट, लेस देन 1%, जो टोटल वाटर प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसमें से लेस देन 1% पानी होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स यूज करते हैं. ठीक है, 1% से भी कम पानी का यूज होता है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है? सो नंबर 1 कि ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस के थ्रू क्या कहा जा सकता है कि ये एक प्राइमरी सोर्स है फूड का या बाकी सभी चीजों का जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड के लिए रिक्वायर्ड है. देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एंड ऑल्सो इससे क्या रहता है, आपके नेचर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, नाउ लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स. स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास अदर कलर की भी लीव्स है, जैसे कि वॉयलेट, ब्राउन, रेड एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, ये लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन वॉयलेट, रेड एंड ब्राउन पिगमेंट के जो अमाउंट है उसके ज्यादा होने की वजह से क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है वो हाइड हो जाता है. दैट इज वाई ये आपको कलर्ड अपीयर्ड होते हैं रादर देन ग्रीन कलर. ठीक है, बट डजंट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड क्लोरोफिल इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. तो क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनमें भी कैरी आउट होता है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट, टू शो कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. राइट, तो इसके लिए आपने बीकर, हाइड्रेला प्लांट, फनल, टेस्ट ट्यूब एंड वाटर रिक्वायर्ड होंगे. आपने कुछ हाइड्रेला प्लांट्स लेने हैं एंड उन्हें एक बीकर में रखना है जो 3/4 फिल्ड होगा विद वाटर. फिर आप प्लांट को कवर करेंगे शॉर्ट स्टेम फनल से. ठीक है, आप उसको क्या रखेंगे, कीप सपोर्ट टू रेज द लेवल ऑफ फनल. आप उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जैसा, सो दैट उस फनल का जो लेवल है वो सीधा रहे. फिर उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करना है जो फुल ऑफ वाटर होनी चाहिए, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर ऑफ द फनल, एंड इंश्योर कि वाटर लेवल जो है बीकर में वो उस इन्वर्टेड फनल में जो स्टेम का लेवल है उससे ऊपर होने चाहिए. एंड देन अब आप इस अपैरेटस को सनलाइट में प्लेस करेंगे फॉर अ फ्यू आवर्स. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो गैस के बबल्स हैं वहां पे आपको दिखेंगे फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फनल. और व्हाट डज इट कंक्लूड कि बबल्स आपके हाइड्रेला प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इस गैस को आप टेस्ट भी कर सकते हो. ये गैस आपकी कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन गैस. That was all about autotrophic nutrition in plants. Now we will talk about heterotrophic nutrition in plants. Student, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगाई, मशरूम एंड मोल्स, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ये अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए और ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर द न्यूट्रिशन. सो ऐसे प्लांट्स को हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो प्लांट शो करते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासिटिक, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट बॉडी, दैट इज नोन एज व्हाट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक कहलाता है. जिनके अंदर ये चलता है उन्हें आप पैरासाइट्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि व्हाट, ऑलराइट. So first of all, what is host? Host क्या है? Host वो ऑर्गेनिज्म है जिससे फूड को ड्राइव किया जा रहा है. ठीक है, एंड इस रिलेशनशिप को बोला जाता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप. सर, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं, उन्हें आप एक्टोपैरासाइट्स कहते हो. कुछ ऐसे हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं.
कस्क्यूटा, जिसे कॉमनली डॉटर प्लांट या अमार्बिल कहा जाता है, वो एक पैरासिटिक प्लांट है. दिस इज कस्क्यूटा प्लांट. ये एक थिन गोल्डन येलो वायर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रीज एंड हेजेस पर ग्रो करते हैं, उसी को आप डॉटर प्लांट या कस्क्यूटा प्लांट कहते हैं. ऑलराइट, चलो. देन नेक्स्ट दे हैव गिवन यू मिसलटो. मिसलटो भी एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, जिसकी ग्रीन लीव्स होती हैं एंड ये मैंगो या महुआ ट्रीज के ऊपर ग्रो करती है. नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी कि रॉटन प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके ऊपर फीड करते हैं, उन्हें आप सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स कहते हो. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगाई में कॉमनली ये न्यूट्रिशन मोड देखा जाता है. व्हाट हैपन इज कि ऑर्गेनिज्म कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं उस डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जिससे वो सारा ऑर्गेनिक मैटर एक सोल्यूबल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद सेप्रोफाइट्स उस लिक्विड में से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, आप इस फंगाई को पिकल, लेदर शूज, क्लोथ्स ऐसे आइटम्स पे भी देख सकते हो. ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड कि कैसे फंगाई सडनली अपीयर होने लगता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन? सो द स्पोर्स ऑफ फंगाई, एक्चुअल में जो फंगाई के स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वेट एंड वार्म कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं. एंड यूजुअली कब होता है? जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है. ठीक है, चलो. See what they have given. This is again a parasitic plant given you in this picture. This is known as Rafflesia. And ये सबसे, इसका जो फ्लावर होता है इस प्लांट का, सबसे बिगेस्ट फ्लावर है in the whole world. Alright? चलो. So you could see they have given you this. So heterotrophic mutation कितने टाइप का था? 3 का, parasitic, saprophytic, symbiotic. Parasitic क्या था? जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ड्राइव करता है, लाइक कस्क्यूटा एंड मिसलटो. सेप्रोफाइटिक क्या है? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, एग्जांपल फंगाई. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सिम्बायोटिक. एंड सिम्बायोटिक में 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं एंड म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लिचेंस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली. सो ये एक स्पेशल टाइप का पार्टनरशिप होता है कोई भी 2 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं फॉर देयर सस्टेनेंस, एंड इसी पार्टनरशिप को बोला जाता है सिम्बायोसिस. ठीक है, इट मींस व्हाट? लिविंग टुगेदर. सो स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है जो लिचन्स पे देखा जाता है. लिचन एक एसोसिएशन है एल्गी एंड फंगस का. एल्गी एक ऑटोट्रॉफ है, वेराज फंगस एक सेप्रोट्रॉफ है. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली बिटवीन देम कि एल्गी, बिकॉज एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है, ऑटोट्रॉफ है, तो एल्गी फूड प्रिपेयर करते हैं एंड ये फूड फंगल पार्ट में जो है वो भी कंज्यूम करता है. वेराज फंगस का काम है वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करना अपने एल्गल पार्टनर को. ठीक है, एंड आल्सो गिव सपोर्ट टू इट बाय फॉर्मिंग अ वेब ऑफ हाइफे. सो इस तरीके से इस पार्टनरशिप के थ्रू एल्गी एंड फंगस दोनों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, ये एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करके आपस में एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह पाते हैं. ठीक है, वेराज ये सेपरेटली यानी कि अलग अलग एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते बिकॉज इनके बेनिफिट्स एक दूसरे से ड्राइव ही होते हैं. So lichens, ये दिस इज लिचन्स क्या है? ये आपके व्हाइटिश, ग्रेइश या ब्राउन स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको रेनी सीजन के दौरान देखने को मिलेंगे. ठीक है, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ऑन द लॉग्स ऑफ वुड और वॉल्स एज पैचेस ऑफ लीफी आउटग्रो. नाउ नेक्स्ट वी हैव इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स. तो एक स्पेशल कैटेगरी प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. ये आपके ग्रीन पार्ट प्लांट्स होते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि अदर ग्रीन प्लांट्स करते हैं, बट स्टिल ये प्लांट्स कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को भी ट्रैप करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स. अभी कैसे करते हैं? सो बेसिकली इन्हें इंसेक्ट्स को ट्रैप करके डाइजेस्ट करना है टू ऑब्टेन नाइट्रोजन. उन इंसेक्ट्स की बॉडी से नाइट्रोजन ड्राइव करना होता है उन्हें डाइजेस्ट करके, बिकॉज ये प्लांट्स यूजुअली एक ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जो डेफिशिएंट होती है इन नाइट्रोजन. सो ऐसे प्लांट्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स होती हैं जिसके थ्रू ये इंसेक्ट्स को कैच कर लेते हैं. For example, pitcher plant, Venus flytrap, bladderwort, which is an aquatic plant, and then we have sundew plant also. All right. See the leaves of pitcher plant. Pitcher plant की जो leaves होती है modified होती है एक pitcher like structure में. And in leaf का जो apex वाला part है वो एक lid बना लेता है जो क्या करेगा? Basically इस pitcher shape की leaf के mouth को close and open करेगा. अब pitcher के अंदर कुछ hair like structures होते हैं जो नीचे की तरफ point करते हैं. जैसे ही एक insect पिक्चर के अंदर एंटर करेगा वो लिड क्लोज हो जाता है और अंदर जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है वो उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में ही एंटेंगल्ड हो जाता है. इस तरीके से पिक्चर प्लांट के जो सेल्स हैं वो क्या करता है, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करेंगे उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को
डाइजेस्ट करने के लिए. दिस इज पिचर प्लांट, दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप, बोथ आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. नाउ स्टूडेंट, दे हैव गिवन यू द डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक. लेट्स डिस्कस इट. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? जो ग्रीन प्लांट्स में चलता है. एंड हेटेरोट्रॉफिक आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स में चलता है या एनिमल्स के अंदर चलता है. ऑटोट्रॉफिक में फूड आपका रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज होता है एंड प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. हेटेरोट्रॉफिक में फूड आपको प्लांट्स या एनिमल सोर्सेस के थ्रू मिलेगा. ऑटोट्रॉफिक में सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है या सोलर एनर्जी यूज करी जाती है. हेटेरोट्रॉफिक में एनर्जी प्लांट बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव प्रोसेस एब्सेंट होता है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में डाइजेस्टिव प्रोसेस इज प्रेजेंट. देन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में देखने को मिलेगा. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स में होता है. नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन यू द डिफरेंशिएशन बिटवीन सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफाइटिक एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे फूड ऑब्टेन किया जाता है डेड और डिकेइंग मैटर से. वेयरएज पैरासिटिक में क्या होता है? फूड एंड शेल्टर आपको किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू मिलेगा, यानी किसी होस्ट बॉडी से. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेप्रोफाइट्स डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है डिकेइंग वेस्ट में से. एग्जांपल फंगाई एंड बैक्टीरिया. वेयरएज पैरासाइट्स फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कस्क्यूटा एंड मिसल्टो आर द एग्जांपल्स. Now next we have the topic replenishment of soil. Replenishment. So as plants, क्योंकि plants nutrients absorb करते हैं soil में से, so धीरे धीरे soil में जो nutrients का amount है वो decrease होने लगता है. So basically healthy plants की growth के लिए soil को time to time enrich करना with the nutrients that is necessary. Alright. So इसीलिए हम क्या करते हैं? soil में manures and fertilizers add करते हैं, तो soil की deficiency जो है उसको make up करने के लिए soil में nutrients की deficiency थी. ठीक है, which is created by constant use of the plant, used by the plant. So basically manure and fertilizers क्या करेंगे? nutrients provide करते हैं soil को, like nitrogen, phosphorus and potassium. कुछ nutrients nature में से obtained होते हैं. For example carbon dioxide के फॉर्म में absorb किया जाता है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाटर में अवेलेबल होता है. Although आपका नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत plenty of amount में प्रेजेंट है, स्टिल इसे प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. इसको पहले एक सल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. एंड यही जो कन्वर्जन होता है फ्री नाइट्रोजन का इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, सो दैट वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो प्लांट्स यूज करते हैं प्रोटीन्स को क्या करने के लिए? फिर सिंथेसाइज करने के लिए. देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू यूजेबल फॉर्म. दैट इज नंबर 1 व्हाट? फार्मर्स. पहले तो फार्मर्स होते हैं जो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करते हैं सॉइल में, उसमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करके. ठीक है. आने फर्टिलाइजर्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, प्लांट्स इन्हें अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेकेंडली कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, दिस इज अ बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट एक प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके. अब राइजोबियम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसीलिए वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है इन रिटर्न अपने फूड एंड शेल्टर के लिए. सो ये भी एक एग्जाम्पल है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स ऑल्सो. राइट. उन्हें क्या नहीं करना पड़ता उसके बाद? फार्मर्स को जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल में ऐड नहीं करने पड़ते हैं अगर उन्हें वहां पे लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है. देन वी हैव एजोटोबैक्टर ऑल्सो. ये भी एक एग्जाम्पल है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. एंड देन इसके अलावा स्टूडेंट देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो लाइटनिंग प्रोसेस के दौरान होता है, एंड ये भी कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है. ऑलराइट. चलिए, that's all for the chapter. It's completed over here, and I hope that you must have understood about the different modes of nutrition which takes place in the plant body. Right? Let's meet very soon in the next session. Till then, keep doing well, learn very well, and thanks to everyone.